नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम्स की प्रीवियस प्रेजेंटेशन प्रीवियस वीडियो से आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 कंटिन्यूड। सो लेट्स बिगिन। Divisibility test. Now, divisibility test will of course cover various digits, and these are nothing but the rules that you can simply remember. आप इन रूल्स को याद रख सकते हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में और एमसीक्यू क्वेश्चंस में समय को बचाने में और आंसर को क्विकली सॉल्व करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सी द नंबर 2। अगर डिजिट 0 या इवन हो तो वह जनरली वो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। नंबर 3 के केस में अगर डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हैं, फॉर एग्जांपल 7212, 7212, व्हेन वी ऐड दोज डिजिट्स it becomes divisible by 3. Number 4, when the last two digits are divisible by 4 or 2 or more zeros are at the end. So दोनों ही एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि 1232 जिसके लास्ट टू डिजिट्स 32 is divisible by the number 4, और 1100 जिसमें कि 2 zeros हैं at the end are both divisible by 4. नंबर 5, जहां पर एंड पे 5 हो या 0 हो वो नंबर सिंपली डिविजिबल होता है 5 से। नंबर 6, जब एक नंबर when a given number is divisible both by 2 and 3. So 1986 का हम देख लेते हैं क्विकली। 2 से ये ऑफ कोर्स डिविजिबल है बिकॉज वी नो, बहुत ही सिंपल होता है, ये इवन नंबर है। और 3 का हमने समेशन करके देखा तो ये टोटल निकलता है अगेन डिविजिबल बाय 3, एंड हेंस सिंस इट इज बोथ डिविजिबल बाय 2 and 3 it is also divisible by 6. Number 7, when the difference between the last two digits, or rather the last digit multiplied by 2 and other numbers is divisible. For example, लेते हैं 798, इसमें लास्ट डिजिट है 8, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, और 79 are the other numbers, which is 79 minus 16 is 63, which is divisible by 7, and thus the number 798 will be divisible by 7. Number 8, last 3 digits are divisible by 8. So let's look at the number 14,75,832. If the 3 digits, which is 832, which is obviously divisible by 3, then of course the number will itself be divisible by 3. Number 9, if sum of all the digits is divisible by 9. Let's look at the example. जब आप इन डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स इसका जो समेशन आएगा वो डिविजिबल बाय 9 होगा, एंड हेंस द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 9. एंड 10 से इफ द ऑफ कोर्स द न्यूमेरिकल और द न्यूमरल एंड्स विद 0. Let's look at other numbers under the divisibility test. So number 11, if sum of odd digits and even digits are equal. फिर से ध्यान से सुने, अगर odd digit की प्लेस पे जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, और इवन डिजिट्स दोनों का सम इक्वल हो या डिफरेंस, तो वो डिविजिबल होता है 11 से. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द नंबर 19,42,93,649. इन दिस ऑड जो नंबर्स है उनका समेशन 18 है और इवन का समेशन 29 है. आप देख सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है बाय 11. नंबर 12, when the number is divisible by both 4 and 3, और हम 4 और 3 के दोनों ही रूल्स देख चुके हैं. आप इसके लास्ट डिजिट्स देख सकते हैं and also see if it is divisible by 4 and 3, and of course these are, so the number will be divisible by 4 and 3 and of course by 12. Number 14, when it is both divisible by 7 and 2. हमने 7 का रूल पढ़ा, हमने 2 का भी रूल पढ़ा. इमीडिएटली लगाए और चेक करें if it is correct or not, and of course the answer is correct. This is again divisible by 14. जब हम divisibility चेक करते हैं 15 की, तो again we follow the similar rule. We see कि 5 और 3 के multiplication
का ही इक्वल होता है 15. So of course, when we want to make sure that if it is divisible by 15, we check if it is divisible by 5 and also by 3. When it is, it will be divisible by 15 as well. In the case of 16, last 4 digits should be divisible by 16. So इसमें example देखते हैं. 1,58,79 lakh 79,632 में last 4 digits, which is 9632, 16 छके 96 और 16 दूनी 32. Of course, it is divisible by 16. Similarly, let's look at the number 18. If the number is even and divisible by 9, it will be divisible by 18. So even number हो और 9 से divisible हो, 9 का simple फॉर्मूला है, आप सारे डिजिट्स को ऐड कर दें और अगर वो समेशन 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. एंड फॉर 18 इट हैज टू बी इवन एज वेल. In the case of number 25, if the last 2 digits are 0 or are divisible by 25, the number will be divisible by 25. For example, 75, of course it is divisible by 25. सेम एग्जाम्पल हमने नीचे लिया है 125 के केस में, जो कि 39, 86, 375 है. अगेन यू कैन सी द लास्ट 3 डिजिट्स आर अगेन डिविजिबल बाय 125. सो ऑफ कोर्स द एंटायर नंबर विल बी. डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यूनिट के प्लेस में एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं. सो लेट्स लुक एट दीज फैक्टर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. कई बार अरिथमेटिक में पूछा जाता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है दूसरे शब्दों में. सो लेट्स लुक एट दीज इन डिटेल्स. व्हेन द नंबर इज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी. एग्जांपल देखते हैं. 24 मल्टीप्लाइड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 97. नाउ बहुत ही सिंपल रूल होता है इसके पीछे, वो है कि यूनिट डिजिट जो भी होगी वो प्रोडक्ट होगी उन यूनिट डिजिट्स की. फॉर एग्जांपल, इसमें आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि आप यूनिट डिजिट्स देखें हर नंबर की और उनको मल्टीप्लाई करके देखें, वही सेम नंबर ही यूनिट डिजिट रहेगा. सो 7 into 5 into 7 into 4 is what the solution will give you as the unit digit of the total solution. Now, this is also important to eliminate options. In lot of times समय कम होता है बच्चों के पास और वो options को choose करने में time लग जाता है, so you could always use these rules. Now comes the complex numbers, which is, let's say if a number is given in an index form. So इसमें हमने कई rules further define किए हैं आपको उसको easy करने के लिए, break down करने के लिए. You can remember these rules and you can always practice. So let's begin with the first. Say for example, if the unit digit is 0, 1, 5 or 6, unit digit will always remain the same. Example देख लेते हैं. 756 raised to power 131. Of course इसमें unit digit 6 है, तो any variable of it will always have the unit digit as 6. The another example is 98,571 raised to power 3365. और of course ये हमने थोड़े difficult examples इसलिए लिए हैं so that we can check कि ये correct है कि नहीं in any of these cases. And इसमें भी आप देख सकते हैं कि unit digit 1 ही रहेगी. Now let's move to the next one where the unit digit is 2. जब यूनिट डिजिट 2 होती है तो आप उसमें गिवन पावर्स को 2 से डिवाइड करें और उसको 2 के ही फॉर्म में प्रेजेंट करें. फॉर एग्जांपल 752 रेज्ड पावर 372. सो इस केस में कई बार हमने देखा है कि क्वेश्चंस बेस होते हैं इनके मल्टीप्लिकेशंस पे. सो जनरली आप जो भी ऑप्शंस दिए होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं या शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं basis these rules. These rules help you in cracking those kind of examination questions. So let's look at how do we convert 752 into raised to the power 372. So in this case, we will only focus on the unit digit. Let's look at 2 raised to power 4 into 93 raised to power 93 is what makes this to become the power of 372. और इसको हम अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं 2 raised to power 4 and raised to power 92 multiplied by 2. Now in this case 2 raised to power 4 हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 गुणे 4 is 2 raised to power 4 is 16. So लास्ट डिजिट हमें 6 आती है और 6 आते ही कोई भी यूनिट डिजिट 6 ही रहती है किसी भी पावर पे.
10 हमें मालूम है कि लास्ट डिजिट 6 आ गई, into 2 is 12, so the last digit is 12. Let's move to the next rule. Say for example, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो आप याद रखें कि यदि पावर, उसकी जो पावर दी हुई है वो ऑड है तो यूनिट डिजिट होगी 4, और अगर इवन है तो यूनिट डिजिट होगी 6। इसे साइक्लिकलिटी भी कहते हैं नंबर्स की, जो कि इस्तेमाल की जाती है, परंतु इन शॉर्ट वीडियोस में हम चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन, इस नॉलेज को, इस रूल को और भी कंसाइज तरीके से आपको प्रेजेंट करें। सो एग्जांपल देखते हैं, ये हमने सिमिलर एग्जांपल पहले देखा था, 754 रेज़्ड टू पावर 372, ऑफ कोर्स द 6 इज द यूनिट डिजिट। लेट्स लुक एट अनदर वन, जहां पर 8 होता है, तो सिमिलरली वी विल ट्राई एंड ब्रिंग दिस डाउन क्लोज टू 0, 1, 5 और 6 और द रूल्स दैट वी हैव जस्ट रेड, और हम उसको उसमें उन नंबर्स पे कन्वर्ट करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन 8 के पावर के 128 के पावर के केस में भी यूनिट डिजिट 6 है। Let's look at next example. Say for example, if the unit digit is 9, तो अगर odd power हो तो नंबर 9 यूनिट डिजिट होगी, और अगर इवन होगा तो नंबर 1 यूनिट डिजिट होगा। Let's move to the next slide, which talks about the basic number theory. अब बेसिक नंबर थ्योरी में हमें ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे रूल्स हैं जो कि हमें याद करने हैं, क्योंकि यही रूल्स ही हमको उस समय हेल्प करते हैं जब हमें समय का अभाव होता है और हमें क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और ऑड नंबर का हमेशा ऑड। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे हम आपको निकालना हो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, या 10 इंटू 10 प्लस 1 विच इज 11, सो 10 इंटू 11 बाई 2 जो आप निकालेंगे वही समेशन होगा उन n नेचुरल नंबर्स का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। इफ देयर आर ऑड नंबर्स, देन द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers will always be n square. Let's move to the next one, where the sum of the first n even numbers is n multiplied by n plus 1. These are all shortcut rules and tools and tips that you can always use when you want to appear for any exam to save your time. Sum of square of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1, the whole divided by the number 6. Ye formulas, of course, these are all designated and designed by academicians, and we've picked up these shortcut tools only for you, जिससे आप इनको इस्तेमाल करके अपना समय और रिजल्ट तक जल्दी पहुंच सके। इन केस हम क्यूब्स की बात करते हैं, तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज डिफाइंड एज n into n plus 1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर। तो हमने ये जो बेसिक नंबर थ्योरी है इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है। दीज आर ऑल रूल्स दैट यू कैन रिमेंबर एंड यूटिलाइज एट द राइट टाइम फॉर द राइट क्वेश्चन। Let's continue with some other things that comes under basic number theory. So in case you want to know which are the prime numbers, so between 1 and 50 there are 15 prime numbers. There are 10 prime numbers between 50 and 100. Let's say if there are 3 numbers where we define them as p, q and r, और उसमें से p, if p divides q and r, then p will also divide the sum and the difference between those two. ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट फिर से सुनिए, यदि p डिवाइड करता है q को और p डिवाइड करता है r को, तो p डिवाइड करेगा उनके सम को भी और उनके डिफरेंस को भी। Critical to solve some of those equations when you have MCQs available and options आपके सामने हो। आप हमारे बाकी एक वीडियो है जिसमें हमने कवर किया है कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स या ट्रिप्स को जो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं to crack an exam when you combine these two, which is those rules that we taught in the previous video and this video, they will always help you in cracking examinations.
product of 3 consecutive natural number will always be divisible by 6. So these are some critical rules that you can utilize. Remember, make a note, and always refer to whenever you're attempting certain questions and answer. So for today, that's about it. Thank you so much for your time, and come back to us for more insights on on the channel 10 Minutes Learning, the Future School. If you like the video, please do respond to us. You can also give us your comments. You can also subscribe to the channel. Thank you so much. Have a wonderful day. Bye-bye.